Okay, so I am receiving a lot of queries regarding this question number 51 of the question bank that I have shared regarding the related to the subject KEC 101 and KEC 201 on emerging electronics. Okay, so the question is related to the communication unit 5. What does question say? That an audio frequency of signal 10 sine 2 pi 500t. So the frequency here is 500, frequency of message. T is used to amplitude modulate a carrier of 50 sine 2 pi into 10 to the power 5t, and calculate modulation index, calculate side lobe frequencies, amplitude of each side lobe frequencies, bandwidth required, total power delivered to the load of 600 ohm, and transmission efficiency. These 6 questions are asked, small questions based on formulas have been asked. So I will just cover it, how to solve it, so that you can do it. Okay, so let me tell you that I have shared this question bank to the students. This question bank consists of around 10 questions from each unit, which it's a combination of numericals and theoretical questions from each unit, and these are the important questions. And if you do all those questions, you will be able to solve any questions coming from these units. So I'm just solving this question related to the communication. Okay, so let me go back to this and stop sharing, and again I will share in screen where I will be solving this question. So let me share that screen. Okay, so here you can see that this, just I have written the first question is to solve for the modulation index. So I'm just trying to calculate the modulation index. So for calculating modulation index, I have to first of all know the frequencies, because you know that modulation index is equal to Vm divided by Vc. So you have to know the Vm and Vc, the value of Vm and Vc. So the value of Vm from this is 10, and the value of Vc from this is 50. So the modulation index comes out to be 0.2. In this way, you can calculate the modulation index. And after modulation index, the second thing is to calculate the percentage of modulation that is in a, you may calculate or may not calculate. This is not asked. So percentage of modulation will be equal to 0.2 into 100, that is 20%. That means 20% of the signal is modulated using this. Okay, and let me make it to full screen so that it will be more visible to you. Other thing is that the second question is to calculate side lobe frequency. So side lobe frequencies. Side lobe frequencies can be calculated from the frequency that is given. So here you can see that in the first one, this is Vm. So here omega, this is 2. So you can say that this is a Vm sine omega t. So omega m is this one. So this one is omega m. The value of omega m will be equal to 2 pi into 500. Therefore which is omega m is equal to होता है 2 pi fm. इसके दोनों की कंपैरिजन करें तो देख सकते हैं कि एफ एम इक्वल टू होगा
500, sorry, 500 hertz. Let us go further. And omega c is equal to 2 pi into, यहाँ से देख लो, ये वाली इक्वेशन से आप देख सकते हो यहाँ पे कितना आएगा, 2 पाई इंटू 10⁵, ये दिख रहा है यहाँ पे आपको इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा ओमेगा इंटू 2 पाई इंटू सॉरी 10⁵. So therefore this ये कितना आ जाएगा, एफ सी इक्वल टू आ गया आपका 10⁵. ठीक है, एफ सी इक्वल टू 10⁵ आपको मिल गया. इसको लिख सकते हैं 100 किलोहर्ट्ज. ओके, तो आपको 100 किलोहर्ट्ज का कैरियर मिल गया है और 500 हर्ट्ज का ये मैसेज है. ये क्या है, मैसेज है आपके पास, और ये क्या है, कैरियर है जो कि मैसेज को मॉड्यूलेट करके ले जाएगा. ओके, तो आप हमारे पास ये दोनों वैल्यू मिल गई हैं. और साइड लोब फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन आपको पता है कि अपर दो साइड बैंड बनते हैं मॉड्यूलेशन के बाद. एक होता है अपर साइड बैंड और दूसरा होता है लोअर साइड बैंड. मैं दोनों की फ्रीक्वेंसी बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं. अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में एडिशन होता है, लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने में समेशन होता है. तो फटाफट इसको एफसी के साथ एफएम को ऐड कर दीजिए और एफसी में से एफएम को घटा दीजिए, तो आपके पास दो वैल्यू मिल जाएगी. वन विल बी, ये कितना हो जाएगा, 100 10⁵ प्लस और 500, और ये हो जाएगा आपका 10⁵, और ये यहाँ माइनस का साइन आएगा 10⁵ माइनस 500. ओके, तो मैं इसको कह सकता हूँ 100.5 किलोहर्ट्ज, क्योंकि इसको अगर किलोहर्ट्ज में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि 0.5 किलोहर्ट्ज है, और इसको लिखा मैंने 100 किलोहर्ट्ज, तो 100.5 किलोहर्ट्ज, और ये हो जाएगी 99.5 किलोहर्ट्ज. अगर हम किलोहर्ट्ज में बात करें तो किलोहर्ट्ज में इस तरीके से दोनों अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी और लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी, दोनों टाइप की फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट किया जा सकता है. थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का जो है वो है, थर्ड पार्ट इस क्वेश्चन का है एम्पलीट्यूड ऑफ ईच साइड बैंड फ्रीक्वेंसीज. तो एम्पलीट्यूड ऑफ ईच side band. So amplitude of each side band frequency will be equal to amplitude upper and lower side band. मीन्स जो एक्चुअली मॉड्यूलेशन होने के बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखें तो दो टाइप के साइड बैंड बन जाते हैं, एक और दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल ही होता है. ठीक है, एक की फ्रीक्वेंसी ये होती है FC माइनस FM, और एक इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाती है FC प्लस FM. इस तरीके से दो साइड बैंड बनते हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर ही होता है. तो जैसे एम्पलीट्यूड इक्वल टू हो जाता है आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स इनटू वोल्टेज ऑफ कैरियर डिवाइडेड बाय 2. इस कैरियर वोल्टेज आपका है यहाँ पे कितना है, कैरियर वोल्टेज मैं भी आपको दिखा दे रहा हूँ. तो ये है आपके पास, ये है कैरियर का यहाँ पे आप ये वैल्यू है 50, तो कैरियर वोल्टेज है 50 एंड 0.2 आपका आया था मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिवाइडेड बाय 2. तो कुल मिला के आपके मन बच जाता है अगेन ये आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जो भी आंसर आता है ये बच रहा है 5 वोल्ट. ठीक है, यहाँ पे आ रहा है आपके पास 5 वोल्ट आंसर. तो एम्पलीट्यूड कितना रहेगा यहाँ पे, दोनों साइड बैंड का 5 वोल्ट का एम्पलीट्यूड रहेगा. अगला क्वेश्चन है नंबर 4th नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बैंडविड्थ रिक्वायर्ड कितनी होगी, बैंडविड्थ कितनी होगी. तो बैंडविड्थ के बारे में आपको बता दूं कि बैंडविड्थ भी जो होती है वो होती है अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो अपर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी आपको आई है 100.5 किलोहर्ट्ज एंड लोअर साइड बैंड की फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई है 99.5 किलोहर्ट्ज. माइनस कर लीजिए, माइनस करने के बाद कितना बच रहा है वो आप खुद ही बता सकते हो. ये बच रहा है 1 किलोहर्ट्ज, मतलब 1000 हर्ट्ज लिख सकते हैं. ठीक है, लास्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है, फिफ्थ पार्ट में पूछा गया है
total power delivered, total power delivered. तो टोटल पावर डिलीवर्ड जो होगा P टोटल होगा, P total will be equal to VC square divided by 2R into 1 plus M square divided by 2. सारी वैल्यूज फटाफट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. 50 स्क्वायर तो ये हो गया आपका 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 into 600 1 plus 0.2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो ये इसका जब कैलकुलेशन करोगे आप तो आपके पास कैलकुलेशन आएगा 2.125 वाट. ठीक है, तो ये हमारा टोटल पावर डिलीवर निकल आया. और सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी से रिलेटेड, तो वो भी मैं फटाफट आपको बता देता हूँ. ट्रांसमिशन एफिशिएंसी क्या होती है? ट्रांसमिशन एफिशिएंसी का इक्वेशन जो ईटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका इक्वेशन होता है एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम स्क्वायर. बस आपको इतना पता रहना चाहिए कि एम का वैल्यू आपके पास आ चुका है 0.2 और 0.2 का स्क्वायर कर डाला और नीचे 2 प्लस 0.2 square. So now this will be 0.0196. Okay, if you want to write the efficiency in percentage, then you can multiply this 0.0196 by 100. The 1.96 will be the total efficiency of this particular modulation. Okay, thank you. Thanks for watching.